So, guys, today's session is very special because today I'm going to introduce you all to one of my very favorite student. His name is Rajkumar, and he is a really brilliant student of mine. He joined our program as a total beginner, but now he has cracked the internship as well as full time offer from Cisco. So, let's hear from Raj himself about his journey and experience. So, Raj, can you introduce yourself to us? Hello everyone, my name is Raj and I'm currently in fourth year of my engineering from a Tier 3 college, Bangalore Institute of Technology. Okay. Okay. I got offer from Cisco. So the Yeah. offer is intern plus FTE and I'll be joining soon as a Cisco. Okay. So, Raj, can you explain the full process of how did you get selected in Cisco, all the rounds and everything in detail? The like every other company is the requirement start with an online assessment. Hmm. So the online assessment were of there were 30 MCQ questions. The Hmm. questions were from operating system, aptitude, Okay. and uh, and the Cisco favorite networking. Yeah, And computer networks, and right? Yeah. yeah, and also there were three DSA questions. Okay. So one question was from hashing and two were from DP. Okay. So DP is very trending these days. So every other company is asking DP. Yeah. So it was a pretty much good questions. Like it Yeah. was medium to hard level questions. Okay. So you basically are saying that in the online round for the coding questions there were two DP based question and one was hashing, right? Yeah, two were DP and one were hashing. And like, were they some popular standard questions or they were not popular standard questions? No, the question that I came across that you could not find anywhere on the internet. It Okay. was like I first time saw those questions, Okay. and uh, and what I found is that those questions can only be solved when you have a better training of a contest and online assessment training. So for solving those questions, you need to do hard and tough DP questions or hashing questions. Hmm. So Okay. if you think that you can do popular DP questions and you can solve those, then you were wrong. Hmm. You have to train hard for those questions. So, like, it is your general guidance to our students, right? That if you want to crack good companies, you should train for hard unseen questions as well, not just the standard popular ones, right? Yeah. Like Okay. all the companies, good companies are asking good questions, Okay. unseen problems. So Okay. move ahead from all the standard questions. Do some extra work and practice some good questions. Okay. And Raj, then can you explain about the next round? What happened? So after I got through the online assessment, Hmm. they were my interview was scheduled. It was a three round of interview. The Okay. first was the first was a technical interview. Hmm. So as it is a technical interview, so everything was about the technical part. So they asked me good questions of DSA. There were questions on hashing graph, and also what was mentioned in the resume. That also played a good part तो in इन शॉर्ट तुम ये बोल रहे हो राज की जो रेज्यूमे में अपने डाल रखा है उसका पूरा पूछा जाता है सिस्को में इंटरव्यू के टाइम पे। हाँ ओके। हाँ पूरा वो जो रिज्यूमे में डाल रखा है वो जो इंटर्नशिप किया है जो प्रोजेक्ट किया है वगैरह वगैरह। जो इंटर्नशिप जो प्रोजेक्ट किया है या हैकाथॉन्स में पार्ट लिया है। तो अच्छा। अगर आपने हैकाथॉन्स में कोई पार्ट लिया है तो जो हाँ। आइडिया था आप उसको अच्छे से बताओ ताकि ठीक सामने वाला इंटरव्यूअर इम्प्रेस हो जाए आपसे कि ठीक है। कि अगर आप कंपनी में आते हो तो कुछ नया इनिशिएटिव लोगे। सो अच्छा। वो एक एडवांटेजेस पोजीशन पे आपको लेके जाता है। ओके। फिर फर्स्ट राउंड के बाद सेकंड राउंड में क्या क्या पूछा गया था आपसे? सेकेंड राउंड था टेक्निकल प्लस मैनेजेरियल। हम्म। तो टेक्निकल में जब आते थे तो उन्होंने पहले पहले तो उन्होंने डीएसए से ही शुरू किया। तो डीएसए में उन्होंने डीपीओ क्वेश्चन बोले। तो बेसिकली लीड कोड मीडियम टू हार्ड क्वेश्चंस थे ओके। जो इंटरव्यू टेक्निकल राउंड में सेकेंड राउंड में पूछे गए थे। ओके। ओके। अपार्ट फ्रॉम डीएसए उन्होंने डेटाबेस के अच्छे क्वेश्चन पूछे थे। नेटवर्किंग अच्छे से पूछी थी क्योंकि सिस्को का फेवरेट है नेटवर्किंग। सिस्को नेटवर्किंग पार्ट में ही है तो वो हाँ। नेटवर्किंग के अच्छे क्वेश्चन अच्छा। पूछे थे। अच्छा। नेटवर्किंग में जैसे उन्होंने डीएनएस के बारे में अच्छे क्वेश्चन पूछे थे। डीएनएस हो गया। फिर जो लेयर्स हो गए जो नेटवर्किंग पढ़ रहे होंगे तो बेसिक है ओएसआई और टीसीपी आईपी लेयर। तो या। वो उन पे उन्होंने ज्यादा फोकस किया कि बेसिक्स क्लियर है कि नहीं। अच्छा। और बच्चों को मतलब ये भी बहुत क्वेश्चंस रहता है कि मैनेजरियल राउंड के लिए कैसे प्रिपेयर करें, तो क्या क्या एक्स्ट्रा चीजें आप करके गए थे मैनेजरियल राउंड के लिए? मैनेजरियल राउंड में मैंने मेंटरशिप में एनरोल किया था। तो मेरे को वहाँ पे बहुत सारे मैनेजरियल क्वेश्चन कैसे टैकल करते हैं उस चीज की ट्रेनिंग मिली थी।
उस चीज का गाइडेंस मिला था। मैंने तो आपको मैंने पास सिस्को सिस्को सिलेक्टेड स्टूडेंट से भी मिलवाया था, राइट? हाँ मैनेजरियल हाँ के लिए, हाँ याद। हाँ, वो इंटरव्यू गाइडेंस भी मिला था हाँ, मेंटरशिप प्रोग्राम के थ्रू मेरे को। ठीक बहुत है। लोगों के पास एक्सपीरियंसेस भी पता चले थे जिन्होंने इंटरव्यू दिया है, हाँ, तो वो काफी हेल्पफुल रहा ओके। मेरे ये इंटरव्यू में। तो बेसिकली वो आपको मैनेजरियल में वैसे क्वेश्चन पूछते हैं जो आपको स्ट्रेस में लेके जाए, जिसपे हम्म, आप वो आपकी थिंकिंग एबिलिटी चेक करते हैं, वो आपको डिफरेंट सिचुएशन में पुट करते हैं कि आप हम्म, कैसे रिएक्ट करते हो सिचुएशंस में। अच्छा। तो वो जो मैंने पहले ट्रेनिंग कर रखी तो वो काफी हेल्पफुल थी मेरे लिए। वेरी गुड, वेरी गुड। तो लाइक अगर हम बहुत सारे बच्चे आपका मतलब पूरा प्रिपरेशन जर्नी जानना चाहते हैं कि स्टार्ट से लेके एंड तक आपने कैसे किया। जैसे जनरली बच्चों को बहुत डिफिकल्ट होता है, स्टार्टिंग में उनसे नहीं हो पाता डीएसए। सीएस फंडामेंटल तो चलो वो तो भी मेमोराइज कर लेते हैं, डीएसए उनसे हो नहीं पाता, फिर बहुत बार बीच बीच में फेल भी हो जाते हैं। तो लाइक आपका पूरा प्रिपरेशन जर्नी बताओ, कितने घंटे करते इससे थे? पहले मैं एक इम्पोर्टेंट टिप देना चाहूंगा हाँ, कि एचआर राउंड्स के लिए, हाँ कि बोलिए। अगर आप एचआर राउंड्स में जाते हो तो आप प्रयास करो कि आप अच्छे से कन्वर्सेशन स्टार्ट करो एचआर के साथ हो जो आपका इंटरव्यू लेने आए हो, ओके। क्योंकि वो आपको देखता है कि आप कितने इंटरेक्टिव हो, कितना हम्म, इनिशिएटिव ले सकते हो, आप उनसे कंपनीज के बारे में क्वेश्चन पूछो। हम्म, अब बहुत सारे ऐसे सिचुएशन मैंने देखे हैं जहाँ पे मेरे जो जान पहचान वाले लोग हैं उनका इंटरव्यू रिजेक्ट हो गया क्योंकि वो अच्छे से कन्वर्सेशन स्ट्राइक नहीं कर पाए थे, वो बस सिंगल वर्ड आंसर दे रहे थे। तो आप अगर इंटरव्यू में जा रहे हो तो सिंगल वर्ड आंसर देने से बचो, कन्वर्सेशन स्ट्राइक करो अच्छे से, डिस्क्रिप्टिव आंसर्स होने चाहिए। डिस्क्रिप्टिव आंसर्स दो अच्छे से। ओके, 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 गॉट इट, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात तो, है। तो कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन कि ये मैंने आपका कैसे प्रिपरेशन जर्नी क्या था, स्टार्ट से लेके एंड तक आपने क्या क्या किया था, आप पूरा बताएं। तो मेरे को तो फर्स्ट और सेकंड सेम तो पता ही नहीं था कि कोडिंग कुछ करनी होती है। तो मैं प्रिपेयर्ड नहीं था इस चीज के लिए। फिर मैंने थर्ड सेम में देखा कि आसपास के लोग कर रहे हैं तो मुझे भी करनी चाहिए। हाँ, तो मैंने अपनी थर्ड सेम से स्टार्ट की कोडिंग जर्नी। हाँ, तो मैंने बहुत खुद से ट्राई किया, दोस्तों से हेल्प लिया, यूट्यूब पे पूरे जाके डीएसए से शुरू किया। हाँ, फिर बिगिनर लेवल क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, हम्म, कंटेस्ट देना शुरू किया मैंने। फिर लेकिन फिर करते करते 6 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, तो मैंने एक पैटर्न देखा कि मेरे तो इम्प्रूवमेंट हो ही नहीं रही है, मेरे कंटेस्ट में इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है। फिर मैंने एक दो जगह अप्लाई किया था, वहां पे ऑनलाइन असेसमेंट में नहीं क्लियर नहीं कर पा रहा था। अच्छा, तो ओके, तो फिर ऐसे ही क्या हुआ कि कॉलेज में कंपनी आती है, उसमें बैठता हूँ तो रिजेक्ट हो गया था। हाँ, तो फिर मैंने प्रोजेक्ट भी बनाना शुरू किया, तो मैंने फुल स्टैक प्रोजेक्ट बनाई। उसके बाद फुल स्टैक के बाद मैंने मेक श्योर किया कि मैं अपना डीएसए बढ़िया करूंगा। हाँ, तो मैं डीएसए प्रैक्टिस कर रहा था, तो वो जितने भी अवेलेबल क्वेश्चंस हैं वो हम्म, बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं। हम्म, तो उससे आपका थॉट प्रोसेस डेवलप नहीं हो पाता है, क्योंकि वो रटे रटाए आंसर्स आपको बताए जाते हैं, तो आपका हम्म, थॉट प्रोसेस डेवलप नहीं हो पाता है। हम्म, तो अ, फिर तो मतलब ऐसे ही कर रहा था मैं, लेकिन कुछ इम्प्रूवमेंट हो नहीं रहा था। ओके, तो फिर मैं ऐसे एक दिन लिंक्डइन स्क्रॉल कर रहा था, हाँ, तो फिर कुमार के सर का आपका कोर्स मिला वहां पे। मैं ही हूँ। मैं तो हाँ, वहां पे मेंटरशिप प्रोग्राम मेरे को दिखा, हाँ, तो मैं सोचा कि एनरोल करते हैं। हाँ, तो मैंने इनरोल किया। तो बहुत लोग मेरे दोस्त ऐसे इमेज बना रखे थे कि हाँ, कोर्सेज लेनी नहीं लेने चाहिए, ये नहीं करनी अच्छा, चाहिए। तो अच्छा, एक थॉट आया कि जब मैं अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट करता हूँ तो उतने पैसे खर्च कर देता हूँ, तो मैं एक कोर्स में क्यों नहीं करूँ, अगर उसमें मेरा एडवांटेज ही हो तो हाँ, मैंने आपके कोर्स में इनरोल किया। फिर इनरोल करने के बाद मेरे को जो क्यूरेटेड कंटेंट्स मिले, जो 800 आवर्स की कोर्स मिला, हाँ, वो फॉर ओए, नेक्स्ट राइट? लेवल। या, हाँ, फॉर ओए वो नेक्स्ट लेवल था। जो जो कंटेंट अरेंज्ड है 8 आवर कोर्स का, वो कंटेंट आपको अभी इंटरनेट पे कहीं नहीं मिलेगा, हाँ, जो मैंने ऑब्जर्व किया। फिर उसके बाद जो रोज रोज और फिर मैंने एक ट्रेनिंग पॉइंट, डेली होती थी आपकी? हाँ फिर मैंने एक पॉइंट बनाया कि मैं जो सेशंस होते हाँ, हैं, वो ओए सेशंस होते हैं, मैं वो कभी मिस नहीं करूंगा। तो मैं अच्छा, अगर कहीं बाहर भी रहता था तो मैं चेक करता रहता था, डॉक डॉक पढ़ता रहता था हमेशा, जो अच्छा, आप डॉक प्रोवाइड करते थे। तो हाँ, वो चीज बहुत हेल्प किया मेरे को। अच्छा, अब ओए में हेल्प किया, हाँ, इंटरव्यूज में हेल्प किया मेरे को। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और राज ने खुद भी बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी। मैं और एक बात बताना चाहूँगा कि अब राज का सिलेक्शन हो गया है, फिर भी राज रोज़ डेली क्लासेस आता है, अभी भी वो मिस नहीं करता क्लासेस को। सो क्योंकि दैट्स रियली ग्रेट वो ऑफ उसको राज। उसके पीछे मेरा मोटिवेशन है कि हमेशा नेक्स्ट नेक्स्ट लेवल के लिए टारगेट करना चाहिए। तो अगर आप किसी चीज के लिए टारगेट कर रहे हो ओके, तो आपको इंडस्ट्री में जो चल रहा है उससे अवेयर होना ठीक है, पड़ता है। तो इसलिए मैं ठीक है, अटेंड करता हूँ ताकि मेरे को हर दिन नया नया क्वेश्चंस मिले, उसको या, मैं प्रैक्टिस करूँ।
ओके, गॉट इट। सो गाइस, आपको रात से ये बात जरूर सीखनी चाहिए कि आपका हो भी जाए फिर भी आप ट्रेनिंग करते रहना चाहिए आपको। जस्ट लाइक आपकी जिम में अच्छी बॉडी हो जाए, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जिम जाना छोड़ दो। तो राज, अब नेक्स्ट चीज, ये बच्चे लोग जो बीच बीच में फेल होते रहते हैं, उनको मतलब उनका कम मतलब लोगों बहुत बच्चे लोग बोलते हैं कि थोड़ा इंटरव्यू देते बीच में फेल हो जाते हैं या कहीं बीच में फेल हो जाते हैं तो बहुत डीमोटिवेशन होता है, फिर वो पढ़ाई नहीं करते, छोड़ देते हैं। तो वो कैसे उसको एक बच्चा कंटिन्यू रख सकता है अगर वो कहीं फेल हो जा रहा है तो? ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी आई थी कि मैं इंटरव्यू दे रहा था, फेल हो रहा था, लेकिन मैंने फिर क्या किया कि एक दिन बैठ के सोच रहा था कि अगर मैं इससे देख के रुक जाऊंगा तो फिर तो मेरा फायदा ही नहीं होगा। तो मैं क्या करता था कि किसी इंटरव्यू के बाद एक अपना फीडबैक सामने वाले इंटरव्यूअर से मांगता था कि मेरा क्या फीडबैक है, मैं उसको पढ़ता था और वो चीज मेरे लिए मोटिवेशन था कि मैं और मेहनत करूं ताकि अगले इंटरव्यू में बढ़िया कर सकूं। तो अच्छा। अगर फेलियर तो लाइफ का पार्ट है, वो आएगा, लेकिन आपको उस फेलियर से मोटिवेशन लेना है, ना कि डिमोटिवेट हो जाना है। तो मैं हर एक अपने फेल इंटरव्यूज से मोटिवेशन लेता था कि मैं आगे चल के और बढ़िया करूंगा। अच्छा, ठीक है, गॉट इट, गॉट इट। और लाइक अगर समझो बहुत सारे बच्चे हैं, अगर किसी बच्चे को अच्छे से प्रिपेयर करना है अच्छी कंपनी के लिए, तो उसका लाइक आप रोड मैप क्या बताएंगे, क्या उसको करना चाहिए, क्या क्या चीजें फ्रॉम द फर्स्ट ईयर इटसेल्फ, ताकि उसका बेस्ट रिजल्ट आए? हाँ, तो आज के इंडस्ट्री में अगर आपको अच्छी कंपनी में जानी है तो डीएसए इज अ मस्ट। हम्म। आपको डीएसए में अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। आपको रोज का टाइम देना है। आप रोज एक मेक श्योर कर लो कि आप अगर बिजी भी हो तो आप रोज का 2 घंटे तो डीएसए को दो ही दो। हम्म। वो आपको देना है। नॉर्मल डे आप जिस दिन फ्री हो उस दिन तो आप 4-5 घंटे डीएसए को दो। और मेक हम्म। श्योर करो कि आप जब भी आप इंटरव्यू पे जाओगे तो आपके साथ एक प्रोजेक्ट हो। तो ओके। डीएसए प्लस प्रोजेक्ट्स ये आपके रिज्यूमे में होने ही चाहिए, ताकि हम्म। आप इंटरव्यू में ऑफ कैंपस भी अप्लाई करो तो शॉर्टलिस्ट हो। हम्म। तो तो मैं फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू डीएसए इज अ मस्ट एंड अ फुल स्टैक प्रोजेक्ट इन योर रिज्यूमे। अच्छा। और ये सिस्को का आप स्पेसिफिक टॉपिक्स बता सकते हैं? बच्चों को जानना होता है कि वो कंप्यूटर नेटवर्किंग के कौन कौन सी चीजें उनको पढ़ लेनी चाहिए अगर वो सिस्को का इंटरव्यू दे रहे हैं तो? अगर आप सिस्को के इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आप मेक श्योर करिए कि आपका कंप्यूटर नेटवर्किंग का फंडामेंटल्स एकदम क्लियर हो। हाँ। स्टार्टिंग फ्रॉम लेयर्स, सारे लेयर आपको क्लियर होने चाहिए विथ रियल लाइफ एग्जांपल्स। आप ओके। कुछ भी अगर पढ़े हो लेयर्स में तो आप देखो कि उससे आप उसको किस चीज से रिलेट कर सकते हो। ओके। तो ये आपका लेयर्स तो आप एकदम फंडामेंटल है, उसको एकदम क्रिस्टल क्लियर करके रखो। फिर ओके। डीएनएस सर्वर आ गए ये, फिर सीडीएन आ गए। तो ये सब चीजें, ये सब टॉपिक्स हैं, आप उसको हम्म। अच्छे से करो। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम्स में बेसिकली जिसको में जो मेरा इंटरव्यू हुआ था तो वो हम्म। बेसिकली थ्रेड्स वगैरह, मल्टी थ्रेडिंग, ये सब का कोड वर्ड आप करना सीख लो कि मल्टी थ्रेडिंग कैसे इंप्लीमेंट होते हैं, ओके। ऑपरेटिंग सिस्टम में थ्रेड्स कैसे कम्युनिकेट करते हैं। अच्छा। तो जो बेसिक बेसिक क्वेश्चंस हैं आप उसको क्लियर रखो। ओके। और फिर उप्स आता है, उसमें आप हम्म। अच्छे से कर लो। उप्स के ओके। सारे 4 पिलर्स तो सबको पता ही होते हैं, लेकिन उसको आप कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो एज अ कोड, वो चीज आपको देखना पड़ेगा। ओके, गॉट इट, गॉट इट। लास्ट चीज, बच्चे ये पूछते रहते हैं कि क्या कहते हैं, कितने घंटे सर हमको पढ़ना चाहिए? तो इसका आप क्या आंसर देना चाहोगे? बहुत बच्चे पूछते हैं आप कि कितना घंटा हम पढ़े, क्या करें जिससे हमारा बेस्ट रिजल्ट आए। तो एक बच्चे को आपको कितना अगर घंटा पढ़ना चाहिए? आपको अगर अच्छे कंपनी में जाना है, आपको अगर अच्छा पैकेज चाहिए, तो मैं सजेस्ट करूंगा 6 to 7 आवर्स तो पढ़ो ही पढ़ो आप। अच्छा। अगर आप एक्सटेंड कर सकते हो तो दैट इज मोर देन एनफ। अच्छा। अगर आप 6 से 7 घंटे रोज का दे रहे हो, डीएसए पे दे रहे हो, चाहे प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो हाँ। तो आप अच्छी कंपनी में लैंड कर सकते हो। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, ओके। और कुछ और फाइनल टिप्स देना चाहेंगे आप बच्चों को इनके अलावा? फाइनल ये कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो आप जितनी प्रैक्टिस अच्छा। करो डीएसए क्वेश्चंस की, अच्छा। उतना आपके लिए बेटर होगा। उतना हाँ, एक चीज देखो, आप कंटेस्ट जरूर दो। हाँ। लीड कोड पे हो चाहे कोड से या कोड फोर्सेस पे हो, आप कंटेस्ट दो, क्योंकि उससे आपकी एनालिटिकल स्किल्स बढ़ती है। आप हम्म। प्रेजेंस ऑफ माइंड बढ़ता है कि आप ओके। किसी मोमेंट पे जाके जल्दी सॉल्व कर दे रहे हो क्वेश्चन। ओके। और वही चीज आपको चल के आगे ओए में हेल्प करेगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और ये जो एक इम्पोर्टेंट चीज जो आपने स्टार्टिंग में ही बोली थी कि एचआर राउंड में हमको बहुत अच्छे से डिस्क्रिप्टिव वे में बात करना होता है, तो अगर एक पर्सन को इम्प्रूव करना है अपना कम्युनिकेशन स्किल्स इंटरव्यू के लिए, तो क्या क्या कर सकता है? कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करने के लिए आप अपने फ्रेंड से इंटरेक्ट करो। आप अगर मॉक कोई इंटरव्यू, आपका लाइक। हाँ, आपका कोई फ्रेंड है तो उसके साथ मॉक इंटरव्यू करो। चाहे अगर आपके पास फ्रेंड्स नहीं भी हैं तो आप मेक श्योर करो कि आप एक रोज अपना वीडियो बना के खुद से। तो हाँ, एक एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप एक क्वेश्चन उठाओ डीएसए का, उसको एक्सप्लेन करना सीखो, उसको वीडियो बना लो। अच्छा। तो तो वो चीज जो आप प्रैक्टिस वीडियो हो बना जाए। रहे हैं
वो प्रैक्टिस हो जाएगी, प्लस आप इंटरव्यू में भी अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे। अच्छा, ठीक है, ओके, गॉट तो इट। ये कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करने के लिए अच्छा तरीका है, आप कर मतलब कि जो भी अपने कम्युनिकेशन स्किल अच्छा करना चाहता है वो कर सकता है ये चीज। ठीक है। तो राज, आपने तो बहुत अच्छा कर लिया। अब जब हमारे न्यू बच्चे आएंगे जिनका सिस्को का इंटरव्यू होगा, तो याद से आप भी उनको हेल्प करना, ताकि सिस्को बिल्कुल के बिल्कुल। सिलेक्शंस आते रहे। और ऑल द बेस्ट जिनको इंटरव्यू कॉल आएंगे।